वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। मैं आज आप लोगों को ये बताऊँगी कि डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी मोटर एंड एसी जनरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम जनरेटर की बात करें, ये मैंने आपको एक नोट्स प्रोवाइड करे हैं, ये पीडीएफ, और मैं इसके साथ अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रही हूँ सो दैट आप लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। जनरेटर्स होता क्या है? जनरेटर्स जैसे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये स्क्रीन दिख रही है, जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको कि ये आपका यहाँ से पावर ली जा रही है। दिस फिगर नंबर फर्स्ट, दिस पार्ट, यहाँ से क्या हो रहा है, आपको इलेक्ट्रिकल पावर है, यहाँ मैकेनिकल पावर है, एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ओके, अगर हम इन तीन पैरामीटर को कंसिडर करें और तब हम जनरेटर और मोटर का फंक्शन समझें। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ इन तीनों चीज़ों से। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या होती है? ये वो डिवाइस होती है या तो जो कोई मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन करे, ठीक है, दिस पार्ट, या फिर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में एनर्जी कन्वर्ट करे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, समझ गए आप? या तो वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, एरो विल बी शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो हम उसे कहते हैं जनरेटर, जो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। वो मैकेनिकल पावर कुछ भी हो सकती है, लाइक एक टरबाइन है जिसे वाटर के हेल्प से घुमाया जा रहा है, या कोई स्टीम टरबाइन है उसे घुमाया जा रहा है। कोई भी मैकेनिकल पावर किसी भी जनरेटिंग स्टेशन या पावर प्लांट में जो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और उसे यूटिलाइज किया जाए फॉर डोमेस्टिक पर्पस या इंडस्ट्री पर्पस, लाइक किसी इलेक्ट्रिकल मोटर को ड्राइव करना हो, घर में हमें हाउस होल्ड एप्लीकेशन में बिजली चाहिए हो, एनीथिंग, for any application we can use the electricity. Okay, and the mechanical power we can be getting from water turbines or steam turbines, and that device which convert mechanical to electrical is called generator, and one which convert electrical to mechanical is called motor, and both of these device are called electromechanical device. What I am saying, electro for electricity, this means for electricity, electricity, and that mechanical part, electromechanical, this mechanical part is your mechanical energy, and this electro part is your electrical energy. This is electrical, this is mechanical. Okay, so this device is called electromechanical energy conversion device. What are they doing? They performing the generator operation, and the another one is performing the motor operation. Can you see the diagram? This mechanical power is converted to electrical power, this is by means of generator. Okay, and the vice versa, if I take the opposite part, electrical energy is converted to mechanical power, that is motor, that is motor, motor, that is the generator of mechanical power, and generator is generator of electrical power. Okay, now the applications of motor and generator, if I consider motor, it can be used anywhere, like used in industry, domestic applicants, offices, and for agriculture purpose. Okay, motor are used for deriving industrial machines such as to derive machine tools, drilling machine, shapers, blower, for furnace, etc., industrial purpose, and for homemade or domestic purpose also it is used, motor, like for transferring our water from one part to another level, and many uses, like in your fan motors are used, in your drill machine, etc. In day to day life you can see very much examples. Okay, now the second part, that is the motor. This we have discussed the generator part. This diagram, generator I have explained, from mechanical power to electrical power. Second one I am going to discuss, as I already discussed, that is motor, from electrical power to mechanical power, that is the part which is of doing the work as motor. Okay, now the second thing, importantly, if I discuss more in detail
about the working principle of generator, you first have to understand the two rules. That is, first, Faraday law. Before I am discussing this thing, first Faraday law should be known, and the second thing is Lenz's law, that you have covered in your class 12th class. Okay, now if I discuss Faraday law in this notes only, I am going to discuss the Faraday law. What is Faraday? Okay, I am just coming to the point. This part. Okay, Faraday is a scientist's name and the law he performed so called as Faraday law. Faraday law में होता क्या है कि जब हम किसी वायर को, एक ये हमारी फर्स्ट डायग्राम देखिए, ये एक वायर है, इससे हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया. ओके, नाउ जब भी कोई इस वायर के पास एक मैग्नेट रखा जाता है, ठीक है, और उसे पास लाया जाता है. जस्ट सी द एरो ऑफ द फर्स्ट डायग्राम. द एरो इज कमिंग डाउनवर्ड. ओके, द एरो इज कमिंग डाउनवर्ड फॉर द नॉर्थ पार्ट. ओके, कैन यू सी द डायग्राम? द नॉर्थ पार्ट इज कमिंग. ओके, एंड वंस द नॉर्थ पार्ट इज कमिंग, galvanometer is placed, the current start flowing, okay, through the coil, and the galvanometer show the deflection. Okay, and when we take this coil away from this magnet away from the coil, the current stop. Similarly happens when we take the another figure. When we take the south pole entering, coming to this part, then the current direction will change. Okay, but the current flow, okay, in the opposite direction with that of. And when there is no motion, can you see? When there is no motion, that means there is no deflection, means no current. Okay, in short I repeat, whenever there is a deflection in the current, that means this magnet is moving. Okay, this is a basic example. Okay, and if north pole is coming nearer to the coil, then it show the direction of the current like this, moving this part, this arrow. And if it is moving away, that means if साउथ पोल इज कमिंग नियर, जो भी कॉइल के साउथ पोल की तरफ आ रहा है, जो मैग्नेट है वो कॉइल के तरफ आ रहा है और वो पोल क्या है, साउथ, तो वो अलग डायरेक्शन होगा. आप देख रहे हैं यहाँ डायरेक्शन आपको अलग दिख रहा है. नॉर्थ, जब नॉर्थ कॉइल के पास आ रहा है तो अलग डायरेक्शन है, और जब साउथ कॉइल के पास आ रहा है तो अलग डायरेक्शन है. करंट का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों में डिफ्लेक्शन शो होगा. बट वेन देर इज नो मोशन, यहाँ पे कोई करंट नहीं बहेगा और कोई गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा. नो डिफ्लेक्शन एट ऑल. ओके, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे, जिसने ये नोटिस करा कि ऐसा हो रहा है. उसके बाद उसने एनालाइज करा, और चीज़ों को एनालाइज करने के बाद उसने कुछ प्रेडिक्शन करी, और वो प्रेडिक्शन लॉज बन गई, और जिसे हमने दो नाम से पढ़ रहे हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. ओके, अब फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ कहलाता है व्हेनेवर अ कंडक्टर कट्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कंडक्टर. ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई भी, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं भी है, ऐसे ही कोई कंडक्टर रखा है ये, और यहाँ मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ पोल है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है कि उसने ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये टाइप की, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं. ठीक है, ये फील्ड लाइन उस मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं जो ये नॉर्थ और साउथ पोल डिटरमाइन कर रहा है. ओके, इसकी फील्ड लाइन में अगर कोई मैं कंडक्टर रखती हूँ, ओके, और वो कंडक्टर ऐसे रखा जाता है कि वो उसकी फील्ड लाइंस को काट रहा है अक्रॉस द फील्ड लाइन, इस तरीके से रखा है कि वो उसकी फील्ड लाइन को काट रहा है, तो क्या होता है, एक ईएमएफ पैदा होता है इसमें. ठीक है, क्या पैदा होता है? एक ईएमएफ. ठीक है, एक ईएमएफ इसमें पैदा होता है. इफ आई रीड इन इंग्लिश, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन विद एनी सर्किट और कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट. इसकी दूसरी डेफिनेशन कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, जो ये फील्ड लाइंस आ रही हैं,
ये किसी कंडक्टर से कटी जाती हैं या कोई कंडक्टर इसे कॉइल चेंज कर देता है, काट चेंज कैसे होगा, जब कोई कंडक्टर उसे काट रहा है तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ पैदा हो रहा है। ओके, अगर इसे हम डिटेल में समझें तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का डायरेक्शन डायग्राम है कि थंब आपका शो करता है मोशन को, मदर, फादर and EMF, that is C, we can also determine by the current. Okay, mother, father and children, this is the just learning method. M for motion, M से motion है, F से field है, किस field में है, magnetic field, और C से आपका current है. Okay, that is EMF, motion, field and EMF. Consider a conductor placed in a magnetic field of a permanent magnet to which a galvanometer is connected. When the conductor is moved upward or downward, just see, the conductor is moved upward or downward. It is changing its position across the field. मीन्स जब कोई कंडक्टर किसी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा जाता है और वो कंडक्टर से कॉइल लगा के एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, एक वायर लगा के मीन्स, और कंडक्टर को ऊपर या नीचे करा जाता है, तो क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी डेफिनेटली. ओके, बट शर्त ये हो कि कंडक्टर कैसे प्लेस्ड हो, अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, so galvanometer indicate the EMF induced in the conductor. If the conductor is placed along or parallel to the field, there will be no deflection. Got it? The conductor कहाँ पे placed होना चाहिए, across the field. Across the field आपको समझ आ रही है, ये field है, और अगर मैं कोई कंडक्टर प्लेस करती हूँ और कंडक्टर पैरेलल हो जाएगा, ऐसे ये कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, ये पैरेलल हो जाएगा, तब इस फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कटेगा, उसे इसके अक्रॉस होना पड़ेगा, जैसे ये पोजीशन में रखा है ऐसा होना पड़ेगा, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा. और व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज आता है तो एक ईएमएफ पैदा होता है और वो ईएमएफ इस गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. नाउ द सेकेंड लॉ क्या कहलाता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उस कॉइल में, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है. गॉट इट? दिस इज द पार्ट. मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी आई रिपीट, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज है फ्लक्स का. जितना फ्लक्स चेंज हुआ है उतना ही वो ईएमएफ पैदा हुआ है. ओके, ये कहना चाहता है सेकेंड लॉ. पहले लॉ में उसने कहा कि ईएमएफ पैदा होता है, दूसरे लॉ में वो कहता है कितना ईएमएफ पैदा होता है, प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ओके, अगर लेंस लॉ को हम देखें, सॉरी लेंस लॉ कह रही हूँ, अगर हम फैराडे लॉ को देखें, जो सेकेंड लॉ है वो ये बताता है कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एन जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है किसी कॉइल में, ठीक है, वो ये बताता है. और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं एन. और रेट ऑफ चेंज होता क्या है, जो भी नई वैल्यू आई फ्लक्स की वो, और माइनस पुरानी वाली वैल्यू से, वही तो चेंज होगा अपॉन टाइम. और किस हिसाब से वो चेंज हो रहा है, वक्त के हिसाब से, दैट इज टाइम. ओके, नाउ इफ आई कंसिडर दीज टू इक्वेशन, दैट इज दिस एंड दिस. Okay, k is the constant of proportionality and this sign show the directivity signs. Okay, that means initial flux is n phi 1 and final flux is n phi 2. Okay, that means the changes will be this, and rate of changes then upon t will come. If whenever then is a rate of change, then it will be divided by t. Okay, now what does negative sign show in this figure? In this expression, sorry, E is equal to minus n d phi by dt. Okay, this is very much clear to you. That means in final flux minus initial flux, that is rate of change divided by t. But what does this negative sign show? This negative sign is very important. It has another great significance. इसका एक अलग ही महत्व है, और जो एक नए रूल के साथ आया जिसे हम लेंस लॉ कहते हैं. ओके, व्हाट इज लेंस लॉ?
नाउ लेंस लॉ क्या कहता है? लेंस लॉ कहता है कि अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट रखा जाए इस टाइप से और उसे समझाया जाए, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट वो लेंस लॉ को बताता है। लेंस लॉ कहता क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजिट द एक्ट विच प्रोड्यूसेस इट। इसका मतलब क्या है? जिस ईएमएफ को इंड्यूस किया गया है वो उसी को अपोज करेगा जिसने उसे पैदा किया है। ओके, उसका डायरेक्शन, जो नया ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ आया है उसका डायरेक्शन क्या बताएगा? जो उसे पैदा कर रहा है उसको अपोज करेगा। ओके, हाउ वी कैन से इट? जस्ट the electrical circuit used for the experiment verification of Lenz law is shown in this diagram। ये क्या कह रहा है? क्लोज की वन, अगर की वन को हम क्लोज करें, की वन ये है आपकी, सॉरी, की वन आपकी ये है एंड की टू ये है। अगर की वन को बंद कर दिया जाए और के टू को ओपन कर दिया जाए, ठीक है, अगर के वन को मैं क्लोज कर रही हूँ और के टू को मैं ओपन कर रही हूँ, जस्ट सी द डायग्राम। बैटरी सेंड अ करंट थ्रू द कॉइल। Battery, obviously K1 is connected to a battery and it will send the current to the coil. Okay, first thing, it is clear that direction of current flowing through the coil is anti-clockwise. Okay, obviously current will be entering from the entering in negative terminal and moving out of positive terminal. Can you see? This is sign, this is this, current will be entering this and this. Okay, it will be moving like this. This is a battery. Okay, so it will be going in an anti-clockwise direction. Anti-clockwise means opposite to the clockwise direction. If a clock is revolving in a circular clockwise direction, anti-clockwise means it will be opposite. Okay, note the direction of the deflection. First case, that is towards the right side. Okay, take out the plug from key 1 and put it to key 2. Now key 2 will be connected, so that coil forms a closed circuit with the galvanometer. Okay, coils form the closed circuit with the galvanometer. Very nice. Then and the battery goes out of the circuit. Obviously battery is getting out of the circuit. Now bring the magnet down towards the coil. Magnet will be coming towards the coil. Just see, magnet is coming towards the coil while keeping north pole of the magnet pointed towards it. Now north pole आपका coil की तरफ है. It will be observed that galvanometer gives deflection towards right, indicating that the direction of induced EMF is anti-clockwise as shown through the upper phase. Okay, got it? क्या कहा इसने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट जाएगा। इसने क्या बोला? देखो, यहाँ से करंट गया, पहला बात, बैटरी से करंट निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, दिस पार्ट। नाउ galvanometer शो डिफ्लेक्शन, दैट इज इन द राइट हाफ. ओके, नाउ दिस K1 is removed from the circuit, K2 is there, forming a closed circuit. Now ये सर्किट पूरा क्लोज जुड़ गया इसके साथ, सॉरी. नाउ जैसे ये सर्किट जुड़ता है, देर इज नो बैटरी कनेक्शन, नो करंट विल बी फ्लोइंग. नाउ जैसे ही नॉर्थ पोल अंदर की तरफ आता है, इसने क्या करा, एक डिफ्लेक्शन देगा गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि अब करंट फ्लो करने लग गया है. ठीक है, जैसे ही डिफ्लेक्शन आएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, राइट को डिफ्लेक्शन देगा. दैट इंडिकेटिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, कि वो एंटी क्लॉकवाइज है. पहले जो करंट बह रहा था और अब जो करंट बह रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. मतलब कहने का क्या है कि आपका जिस पहले करंट ने उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस किया था और उस वजह से जो करंट बह रहा था, और जो नया करंट पैदा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा. ओके, विल गेट टू नो इट व्हेन वी डिस्कस वेल इन दी जनरेटर सेक्शन. ओके, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम जनरेटर सेक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, जनरेटर सेक्शन में आ जाते हैं. जनरेटर सेक्शन क्या कहलाता है, जनरेटर सेक्शन कैसे काम करता है, जनरेटर सेक्शन कैसे काम करता है. फर्स्ट यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आएगी और आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सॉरी,
दिस इज द वर्क ऑफ जनरेटर. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको समझा दिया. दैट इज फर्स्ट थंब. इफ यू टेक द लेफ्ट, sorry, if you take the right hand right hand and the first thumb show the motion, then your field, then the last one EMF or the current. Okay, from the what is happened now, just see the diagram. This diagram is very important for the generator. Just see the diagram. These are two permanent magnet, north pole and south pole. यह दो permanent magnet है, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है. जस्ट सी, देर इज नो बैटरी कनेक्टेड. नाउ इफ अ कॉइल इज सच दैट इट हैज़ अ रेक्टेंगुलर बॉडी. कॉइल इस तरीके से कि इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखी जा रही है. ओके, वो बॉडी एक रजिस्टर से कनेक्टेड है. कैन यू सी द डायग्राम? दिस बॉडी एक सिंपल वायर है जो एक रजिस्टेंस से कनेक्ट कर दी जा रही है. ओके, नाउ क्या हो रहा है, इस वायर को घुमाया जा रहा है. इसको मैं, ये जो आप एरो दिख रहे हैं, ये खूब सारे एरो, ये एरोस क्या कर रहे हैं, इस वायर को घुमा रहे हैं. ठीक है, इस वायर को जब हम घुमाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसी रखी गई है. जैसे ये इस टाइप से घूमेगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स कट जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा. उसमें एक ईएमएफ पैदा होगा तो एक करंट बहेगा. करंट बहेगा वो इस रजिस्टर से जाएगा. ठीक है, और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज आ जाएगी. ठीक है, ये बात क्लियर है. केस नंबर 1. ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, ये हम क्या पढ़ रहे थे, जनरेटर. ओके, नाउ अब क्या हो रहा है, सेम. लेट इट बी रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड बाय सम प्राइम मूवर गिविंग अ जनरेटर अ मैकेनिकल टॉर्क. ये कह रहा है कि उस वायर को जो मैंने अभी दिखाया था उसे एक प्राइम मूवर से कनेक्ट कर दो और एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ, जिससे कि टॉर्क को एक मैकेनिकल, जनरेटर को एक मैकेनिकल टॉर्क मिल जाए जो TM है. ओके, second thing, the coil side or conductor cut the magnetic field lines of force. Obviously if it rotate it will cut the magnetic lines of force and an EMF in induce. एक EMF पैदा होगा जैसे ही वो फोर्स को कटेगा और वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है तो उसमें एक करंट बहने लग जाएगा. ठीक है, उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस. द डायरेक्शन ऑफ करंट इज मार्क्ड ऑन द कॉइल. जस्ट सी द कॉइल डायरेक्शन एंड मार्क्ड ऑन द कॉइल. ओके, कॉइल का डायरेक्शन देख लो, करंट कैसे बह रहा है. ठीक है, अब क्या हुआ, the second action start. The current carrying coil or conductor. Now first case is clear. फर्स्ट केस क्या था आपका कि एक कॉइल रखी है उसमें कोई करंट नहीं बह रहा है. पहले केस में वो क्या हो रहा है, रोटेट करा रहे हैं हम उसे प्राइम मूवर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जैसे ही वो मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी और एक ईएमएफ पैदा होगा. जैसे ही वो ईएमएफ पैदा हुआ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जैसे ही होगा तो एक करंट बहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा है, करंट विल फ्लो. ओके, करंट बहेगा. ओके, एंड नोट द करंट डायरेक्शन. कैन यू सी द करंट डायरेक्शन? दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस, नाउ द केस चेंजेस. केस कम्स नाउ अ कॉइल इज देयर इन विच करंट इज देयर. पहले कॉइल में करंट पैदा हो गया, अब उस कॉइल में करंट है. दूसरा केस, वो कॉइल का करंट एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है. दैट कॉइल विद अ करंट इज इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब क्या हो रहा है, करंट कैरिंग कॉइल और कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, हैंस द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क. जब भी, ये आपने फिजिक्स 12th में पढ़ा होगा कि जब भी किसी मैग्नेट के आस पास, मैग्नेट के बीच में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो उस जगह पर, वहाँ पर कोई करंट कैरिंग कॉइल या कंडक्टर रखा हो तो वो अपने में एक मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकल टॉर्क पैदा करता है. उसमें एक्सपीरियंस किया जाता है. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई कॉइल रख दूँ तो वो अपने अंदर एक टॉर्क पैदा कर लेता है, मतलब वो घूमने लग जाता है. ओके, ठीक है. एंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी अपोजिंग टू द डेराइविंग टॉर्क. ये समझ आई आपको? मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो कॉइल में नया करंट पैदा हुआ वो एक टॉर्क देगा और ये जो नया टॉर्क है वो कौन सा टॉर्क है, दैट इज TE, दैट इज TE, और वो TM को अपोज करेगा. दैट इज लेंस लॉ
कहने समझ आया क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ये तो टी एम था, जस्ट सी द डायरेक्शन। ये बहुत सारे जो यहाँ पे एरोज बने, इनका डायरेक्शन देखो। ये तो क्या था, टी एम। टी एम क्या था, उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल किसी नॉर्थ या साउथ पोल में रखा जाता है तो उसमें एक टॉर्क पैदा होता है, और जो टॉर्क है टी ई, वो टी ई टॉर्क अपोजिट होगा डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन टी एम टॉर्क के अपोजिट होगा। ओके, क्लियर है? दिस इज कॉल्ड लेंस लॉ। ओके, अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनो। अब वो टॉर्क पैदा हुआ, नया टॉर्क जो पैदा हुआ, जिसे मैं टी कह रही हूँ, उसने फिर से लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को कट किया, फिर से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और जो ये नया ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी वजह से एक करंट बहेगा। तो जो ये नया करंट है पुराने वाले करंट को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? इसका डायरेक्शन पुराने वाले करंट के डायरेक्शन से अपोजिट होगा। इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इस करंट को नोट करो। क्लियर है? ओके, एनी प्रॉब्लम? क्या मैं रिपीट करूं? समझ आ गया होगा। मैं एक बार रफली थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। ओके, नाउ वन थिंग, व्हाट इज दिस टी एफ? दिस इज फ्रिक्शनल टॉर्क. Okay, this is frictional torque. You understand what is frictional? Frictional torque, some friction is there, means it will a frictional force which causes a frictional torque. That means total Tm will be equal to Te plus Tf. Okay, this is full one. Now मैं एक बार brief idea दे रही हूँ. In short, क्या हो रहा है? एक कॉइल रखी गई है. Can you see the coil? एक कॉइल रखी गई है सेंटर पार्ट पे, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। इन दो कॉइल के बीच में, सॉरी, इन दो मैग्नेट के बीच में कॉइल रखी गई है जो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है टीएम से। टीएम इज द टॉर्क। ये मैकेनिकल फोर्स जो घूम रहा है उसे टॉर्क कहते हैं। ठीक है, ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है, मैकेनिकल फोर्स जो इसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटी, लेंस का पहला लॉ, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेगी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और रेजिस्टेंस में करंट बहने लगा। ठीक है, ये I1 करंट है। ओके, दिस इज I1 करंट, सॉरी, दिस इज I1 करंट। नाउ अनदर पार्ट, अब क्या हुआ? I1 करंट बहने लगा। अब कॉइल, दिस इज द केस 1 गिविंग I1 करंट। नाउ केस 2, दूसरे केस में क्या हो रहा है कि ये कॉइल क्या है? अब ये कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें एक करंट बह रहा है। जब भी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कोई करंट कैरिंग कॉइल रखी जाती है तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, और सॉरी, उसमें एक ईएमएफ पैदा नहीं होता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब भी एक नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कोई कॉइल रखी जाती है तो ईएमएफ तो पैदा होता है, बट उससे पहले एक कंडीशन ये है कि जब भी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कोई कॉइल रखी जाती है और उसमें करंट बह रहा होता है, ठीक है, तो उसमें एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसे हम टीई कहते हैं, और वो कॉइल को दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जो टीएम का डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाता है। जैसे ही वो टॉर्क घूमता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटती है और एक ईएमएफ पैदा होता है। एक ईएमएफ जैसे ही उसमें पैदा होता है करंट बहेगा, और जो ये नया करंट है दैट इज I2, ये करंट अपोजिट डायरेक्शन होगा विद दैट ऑफ I1। ओके, अगर I1 करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये इसे अपोज कर रहा है। इस I1 करंट क्या था? इसको पैदा कर रहा है, और ये यही इसको अपोज कर रहा है, और यही लेंस लॉ है। यही लेंस लॉ ने बोला है जो नया करंट है वो किस वजह से पैदा हुआ? I1 करंट की वजह से पैदा हुआ, और यही I1 करंट यही I2 करंट इस I1 करंट को अपोज कर रहा है। ये आपका लेंस लॉ हुआ। होप यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। Okay, now I will move to a motor principle. What does a motor say? Motor have another significant principle. What is that? That first point, same, the construction diagram remains the same. For north pole and south pole magnet will be there, coil will be there, but there is no resistance. Here battery will be there. Okay, here battery will be there. You can just see the diagram. Here resistance is there,
here battery is there. Okay, can you see the diagram? Now what happened in motor case? We provide the current, we just provide the current. Okay, because motor principle is electrical energy is converted into mechanical energy. Okay, so current carrying conductor is placed in magnetic field, and conductor experience a mechanical force, that is torque. Okay, and that torque will move the coil, same principle. Okay, that coil move the, that torque moves the coil, and when the coils rotate changes the field lines, and when the field lines of magnet changes, an EMF is induced. Okay, the direction of this is called by Fleming left hand rule. The magnitude of this force is F is equal to BIL. Okay, F is equal to BIL. What I said, that is a current. What we have to focus, sorry, we have to focus. Just see, a battery is there, current will start moving, and conductor is to be in place. What I said, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, okay, it will experience a force, and that force is a torque. Okay, and that is determined by F is equal to BIL. F is equal to BIL, that is current. Okay, we just get to the expression, what does it call, that is BIL, that you have discussed in the class 12th. Okay, you can just analyze what does it called. F is your force, B is your magnetic field, I is your current, L is your length of the conductor, just like that. Okay, now if I consider one thing that is most important, that when this we are only restricted to this learning, that is electrical energy is given and we get mechanical energy. Okay, when a current carrying coil is placed in north and south pole, it experiences magnetic field and it will rotate, giving mechanical energy. After that, what? After that, when a coil rotate, it changes field lines, and field line changes and EMF is induced. Okay, this point is important, and that EMF is called back EMF. Okay, in case of motor, that is called back EMF. Okay, hope you understand the working principle. If I consider the expression, just see the expression, this is very much clear. This is in terms of omega. If I multiply by omega, then omega Tm is your mechanical input power. Okay, now if I consider this equation is important. E is equal to IR, E is equal to this one equation, this part, IR plus I small r. Okay, this is nothing, this is the V, generator is this, and this V is this V. Okay, E, that is induced EMF, is equal to output voltage plus voltage drop in the coil. Okay, some I is missing here, this part. Okay, and if I multiply by I to both side, we will get electrical power delivered, EI is electrical power delivered, electrical power supplied to the load, and electrical power wasted in resistance. Okay, now if I consider the motor expression, what is motor expression? V is the applied voltage, E plus IR. Okay, R is the resistance of the coil, E is the induced EMF, what we call it back EMF. Okay, और जो ये EMF पैदा हुआ है वो पुराने वाले वोल्टेज को अपोज करेगा. इट इज़ लाइक दिस, वी गेट इट, वी कैन जस्ट सॉल्व इट लाइक दिस. V is equal to E plus IR, V is equal to E plus IR. We can calculate for I. Okay, I is equal to V minus E upon R. Multiplying by both sides I, we get electrical power input to the machine. VI, EI electrical power available for the conversion, and this is the power lost due to resistance. Okay, we can have this part also. Okay, what does this part state? Input power given, copper losses,
Okay, frictional losses, whatsoever losses were there, it is considered, and then it is the output power. Means input minus this, and that we got output power. Okay, similarly for this mechanical power, frictional losses will be there, copper losses will be there. Mechanical power minus this frictional loss minus copper loss give the electrical output. Okay, this is the principle for motor and generator. Okay, you can just go through it, how the torque is being aligned by the two field. Okay, just see how it is going to align. Okay, this part, production of torque, unidirectional torque. Okay, electromagnetic induction, Faraday law I have covered, first law, Lenz's law, this electrical machine like this. Okay, now these are all which I have discussed with you. It's rotating electrical machine. It's of two type. Very first type is DC machine. Very first type is your DC machine, and then AC machine. Okay, DC machine and AC machine we will consider later on the next unit. Then your induction machine comes under DC machines as shown in the book. Two case of induction motor we have discussed. Then synchronous machine. Okay, it's like this. We'll discuss later on with a brief introduction with all. Here the basic introduction or understanding is of rotatory electrical machines. Okay, how just this chapter is dedicated for motor and generator principle, how it's working. Okay, now if we consider for DC machines and AC machine, what we are saying, there are two parts. I'm just giving basic introduction for both these. It's giving, okay, they are synchronous machine and induction machine. If we consider further classification, AC machines are also classified on the basis of number of phases, like single phase motor, three phase motor. Okay, got it? DC machines are सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन. टू टाइप्स की, दो टाइप की होती है, एक सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. एसिंक्रोनस को हम इंडक्शन मशीन भी कहते हैं. और एसी मशीन्स कितने प्रकार की है? दो, सिंगल फेज एसी मोटर और थ्री फेज एसी मोटर. समझ आइए आपको, डीसी मशीन और एसी मशीन. ये क्या है? सिंक्रोनस है और ये एसिंक्रोनस है. एसिंक्रोनस को हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं या इंडक्शन मशीन भी कैसे. मशीन कैन बी जनरेटर और मोटर बहुत. और एसी की बात करें तो ये क्या, थ्री फेज और सिंगल फेज मशीन. एसी मशीन, एसी मोटर, एसी जनरेटर. ओके, नाउ होता क्या है? होता ये है कि दो पार्ट होते हैं, एक तो स्टेटर होता है और एक रोटर होता है. ठीक है, स्टेटर हमें हमेशा स्टेशनरी लेते हैं और रोटर हम हमेशा रोटेटरी लेते हैं. ठीक है, इनमें क्या होता है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होते हैं. या तो स्टेटर में आपके पोल्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है. ठीक है, द फील्ड वाइंडिंग्स लगाई जाती है, जैसे हम पढ़ सकते हैं इन डीसी मशीन. फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पार्ट द डीसी मशीन. इन डीसी मशीन द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टार्टर पोल, जो स्टेशनरी पार्ट है, विच आर अटैच फिक्स्ड विद द स्टार्टर. ओके, स्टेशनरी पोल कैसे ऐसे रखे जाते हैं. अगर मैं स्टेटर बनाती हूँ इसे, ये मेरा स्टेटर है और ये मेरे पोल्स हो गए. ओके, ये मेरा स्टेटर है, ये मेरे पोल्स हो गए, लाइक दिस. सॉरी, दिस आर पोल्स, दिस आर स्टेशनरी पार्ट, स्टेटर, और इन पे फील्ड वाइंडिंग है. ये फील्ड वाइंडिंग कहलाती है. ये स्टेटर हो गया पूरा, इसे मैं स्टेटर बोलती हूँ. इसके अंदर एक रोटर होता है. ओके, और यहाँ पूरे हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड आ गई है. ठीक है, इस पूरे हिस्से में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, द फील्ड वाइंडिंग कोई
मैग्नेट नहीं है, परमानेंट। फील्ड वाइंडिंग में करंट दिया जाता है, ठीक है, विद अ फील्ड स्टेशनरी इन स्पेस, ओके, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? फील्ड वाइंडिंग में हम करंट देके उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ओके। फिर आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे रखी जाती है। द आर्मेचर वाइंडिंग ऑल्सो हैज़ कम्यूटेटर विद स्टेशनरी ब्रशेस फॉर कनेक्शन टू एक्सटर्नल सप्लाई, ओके। The voltage are induced in the armature winding which are alternating. Then commutator will brush assembly act as a rectifier or inverter, making the armature terminal voltage unidirectional. Okay, got it? What हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमारा रोटर है, रोटर, sorry, this is rotor, this is this thing, okay. I am not drawing full, here also, here also, here. दिस इज कनेक्टेड विथ आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है। उस आर्मेचर वाइंडिंग से जो भी डीसी जनरेटर की बात हो रही है, डीसी जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर, डीसी जनरेटर में पहले तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया जाता है, ये होते नहीं है, ठीक है। इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ये मैग्नेटिक बनते हैं, इसके अंदर एक फील्ड पैदा हो जाती है। जैसे ही फील्ड पैदा होती है, ये रोटर होता है, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये रोटर रोटेट करेगा, ठीक है। या तो अगर ये जनरेटर की तरह काम कर रहा है, ये रोटर रोटेट कर रहा है, फिर क्या हो रहा है? इस फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स, फील्ड लाइन ऑफ या फ्लक्स कट हो रहा है, फ्लक्स कट हो रहा है, तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में नया करंट पैदा हो जाएगा, इंड्यूस होगा करंट। और वो करंट कैसा होगा? अल्टरनेटिंग करंट होगा, एसी करंट होगा, ओके। उस एसी करंट को हमें, क्योंकि डीसी जनरेटर है, डीसी में कन्वर्ट करना है, तो कम्यूटेटर लगा होगा, कम्यूटेटर के साथ ब्रशेस होंगे। कम्यूटेटर का काम क्या है? कि वो उस अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शनल में बदल दे, मतलब एसी को डीसी में करंट चेंज कर दे, और जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो एक डीसी करंट मिलेगा, ओके। ये एक डीसी जनरेटर की बात हो रही है, ठीक है। इसमें एक इंडक्शन मशीन भी है जो हम आगे